नमस्कार। एक संवाद एट अरुणिम अंकुरन में आपका हार्दिक स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बहुत स्पेशल एपिसोड है। ये वाला एपिसोड इज डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. They are the most beautiful people on earth. They make our lives beautiful. They bring so much joy to everybody's life. So this is a token of my gratitude to motherhood everywhere, in whichever way, in whichever form it is. Arunima Ankuran is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunima Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make an impact, each person can be a change maker. That is the inspiration which drives us every day. Today's special guest is Ma, Mrs. Prabha Mathur, MA B.Ed, Sangeet Prabhakar, author and singer. She also has a YouTube channel now, Prabha K. M. Mathur. She's the author of a book, Spandan or Anubhutiyan, which are stories from her own life. Mothers are like no other people. They are angels. They bring so much joy and happiness into everybody's life. They do so many things that we don't even realize they are doing, we don't even notice. This episode is a journey with Ma to some of the stories that are a part of her life and a part of mine too. I'm sure all of us have so many different stories about our experiences as children with our mothers and as mothers later on in life. So, one thing that probably all of us have experienced is whatever our mothers do impacts us so majorly, we may not realize that till much later in life. So, there are certain things that I feel now have influenced me, and I think the biggest one of them is positivity. My mother is one of the most positive people I've ever met. She has been a part of our lives through the ups and downs. There have been so many challenges, there have been so many trying times, but I've never seen her get perturbed. She has a sense of calm. She has always been a patient person. You'll never see her ruffled. And I think that has been a very big strength to the whole family because when we saw her like that, it gave us strength, it gave us a sense of belief that things will be all right. And to my mother and to all the mothers who have been playing this role in the lives of their children, that of an anchor. Even now, I'm sure some of you will connect to this when there is a recipe and you get stuck. You can always make a phone call and you will know whatever the process is, whatever the ingredients are. Every small thing that becomes a question mark in our lives, we always search for mothers and look to them for answers. It's something only when you experience it, then you realize so many different roles played by one person. And I think there could be nothing more true than God could not be everywhere, so He made mothers. I'm so grateful that I'm able to have this conversation with Ma. And to all the mothers and to all the children out there, happy Mother's Day. So, welcome to Ek Samvad, Ma. Before we go any further, I'd like to share the story of a little girl who didn't like to go to school, who didn't like to study, who used to often fail in several subjects, lots of red marks in the report cards. And she had a sister and a brother who used to top their class. But this is the magic of motherhood and of a special mother like Ma. She never allowed that sense of failure to take roots. She kept on encouraging very patiently, and she always stood by her
And today it's the same girl who's interviewing her on Arunima Ankuran. So I think सबसे important message तो ये है कि your mother is your best friend, whether you are successful or you're not successful at the moment. वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है. She always has faith in whatever you're doing, and she gives you that strength to keep on having belief in yourself. So this Mother's Day, I'm so happy that Ma is with me, and I'm just going to talk to her about a few things that have influenced us, both of us, in so many different ways. So welcome to Ek Samvad, Ma. आपने जो इतने सारे सालों में हम लोग के लिए बहुत सारी काउंटलेस चीजें की हैं, तो all those things have had an impact on us. They made us the people we are, just in the same way जो आपकी मम्मी ने आपके लिए किया जब आप छोटी सी थी, तो that had an impact on you. तो सबसे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको याद आती हैं अपनी मम्मी के बारे में, नानी के बारे में? जैसा भी तुमने कहा कि मदर सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वर्ल्ड पूरे संसार में मदर का जो महत्व है वो सब जानते ही हैं। ऐसे ही मेरी माँ भी बहुत ही संभ्रांत महिला थी, बहुत ही पेश, मतलब कभी उन्होंने हमें डांटा नहीं, कभी गुस्सा नहीं किया, शांति से जो काम कहती थी जो करती थी, पढ़ाने में किसी चीज में कसर नहीं छोड़ी, और खुद भी वो बहुत ही होशियार थी हर एक काम में, जिसमें से खाना बनाने से लेके सिलाई बुनाई कढ़ाई कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उन्हें नहीं आती थी। तो मेरे लिए तो उनका लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्व है ही, बहुत ही अच्छी थी मेरी माँ। मैं तो यही कहूंगी मेरी माँ सबसे अच्छी माँ थी इस दुनिया की। तो आप उनको क्या बोलते थे, क्या बुलाते थे? हम उन्हें बहुआ बुलाते थे, बहुआ। तो तो जब जब कभी कुछ गड़बड़ होती थी, क्योंकि बच्चे तो गड़बड़ करेंगे, तो जब कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाती थी, तो वो कैसे हैंडल करती थी उसको? जस्ट एनी एग्जांपल इफ यू कैन थिंक ऑफ कि बिकॉज आजकल के कॉन्टेक्स्ट में तो एज पेरेंट्स हम सोच ही नहीं सकते कि बिल्कुल डांट नहीं रहे, तो कैसे हैंडल करती थी? उनके भी तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस होती होंगी एज ए मदर, तो हाउ वुड शी डिसिप्लिन यू? मे बी दैट इज द राइट वे टू आंसर। मुझे तो कभी भी याद आता नहीं है कि उन्होंने हमें डांटा बहुत ज्यादा। जो चीज मना तो करना ही करती थी, जो कुछ ऐसा काम होता था, अगर कोई गलत काम हम करते थे तो मना तो करती थी, लेकिन गुस्सा उन्हें कभी नहीं आता था। ऐसे हमने उन्हें जैसे नहीं देखा कि भी फटकार रही है पूरी तरह से। तो बस हम आराम से रहते थे घर में, बहुत शांति से, शांत वातावरण था हमारे घर का। अच्छा लगता था, खूब खेलते खेलते थे हम लोग, पुराने जमाने के मेरे परिवार है, खूब सारे हम लोग भाई बहन थे, तो आपस में हर तरह के खेल खेलते थे हम, खुश रहते थे। तो जैसे कि आपकी मम्मी ऐसी थी, तो मुझे लगता है कि मेरी भी मम्मी ऐसी थी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके रोल मॉडल्स होते हैं, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, उनको देख देख के आपके पेरेंटिंग पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है? तो ये बात मुझे भी ऐसे लगती है कि हम लोग को भी आपने कभी ऐसे डांटा नहीं, वो यू नेवर रियली गॉट एंग्री। और मुझे याद है कि कभी कभी आप कोशिश करती थी, तो इट वॉज नॉट प्रॉपर, नहीं नहीं डांट पाती थी, वो आपको नेचुरली वो आता ही नहीं है आपके अंदर। तो ये भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है फॉर पेरेंट्स कि आप अपनी बात भी करिए, डिसिप्लिन भी करिए, बट इन सच अ वे कि गुस्सा नहीं होंगे, बिना गुस्सा हुए। तो वो क्या, व्हाट इज द ट्रिक? अब ठीक, तो उसको क्या कहूँ मैं, वो तो हर एक का स्वभाव कुछ तो अपने जन्मजाति होता है। जैसे कि हमने भी अपने घर में ऐसा कुछ नहीं देखा, ये डांट फटकार वाला वातावरण मैं जैसा बता रही हूँ, और ऐसे हमने भी किया, हमने कभी लगा ही नहीं बच्चों को ऐसे करना चाहिए। गलती करते हैं तो समझा दो, प्यार से समझा दो, ये भी तो हो सकता है, ये थोड़ी कि हमेशा। और बच्चे भी जितना अच्छा प्यार की भाषा समझते हैं, डांट फटकार की नहीं समझते। वही बात अगर आप उनको ठीक से समझाएंगे तो जल्दी सीखेंगे, जल्दी समझने समझेंगे। तो जबरदस्ती डांटना फटकारना मारना पीटना तो बहुत ही दूर की बात है, मारने का तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि मार भी पड़ सकती है। तो बस ऐसे हम लोग आराम से रहते थे, कुछ बात होती थी अगर वो कहते थे तो हम सीखते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे।
ऐसे हमने भी जैसा उन्होंने किया हमारे साथ, हमने भी अपने बच्चों को ऐसे ही। नहीं, पर वो किस लेवल की पेशेंस चाहिए आपको कि किसी की रिपोर्ट कार्ड में 4-5 रेड मार्क्स आ रहे हैं, फेल हो गए, उनका रीटेस्ट हो रहा है, तो व्हाट वाज दैट थिंग व्हिच केप्ट यू सो पेशेंट? बिकॉज ये एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट है फॉर अ पेरेंट कि दो बच्चे आपके टॉप करते हैं कंसिस्टेंटली क्लास में और एक कभी फेल हो जाती है, कभी नहीं करती है, तो सबको अलग अलग तरीके से हैंडल करने में क्या, व्हाट इज दैट पेरेंटिंग स्किल विच यू पुट टू यूज? क्या क्या सोचती थी आप जब ऐसा होता था, तो हाउ वुड यू फील एज अ हाँ, पेरेंट? हम समझा देते थे कि भाई अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। जैसे अगर अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हर एक बच्चे का ऐसा ही है, जो जो जैसा करेगा। हर एक मनुष्य का ही ऐसा है, जो जैसा करेगा वैसा बनेगा। तो हम यही कह देते थे कि भाई अगर तुम फेल होगी तो तुम्हें एक साल और पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा उसमें हानि लाभ जो कुछ है तुम्हारा ही है। इसलिए तुम अपने आप ही उसमें, वो तो धीरे धीरे करके समझ में आ भी गया। फिर वही टॉप भी करने लगी क्लास में। तो तो आई थिंक गिविंग चिल्ड्रन द पावर ऑफ चॉइस, हाँ, कि आप उनको बता दीजिए कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप जो कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दीजिए और फिर लेट देम चूज, हाँ, है ना, कि वो अब कैसे बिहेव करना है वो खुद ही उनको समझ में आता है। तो आप जैसे बचपन में तो सब लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कभी ना कभी करते ही हैं, तो आपने कभी एज अ स्टूडेंट ऐसा हुआ कि होमवर्क नहीं किया या समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई मेमोरीज? हाँ, ऐसी मेमोरीज है। हम पहले दशहरे दिवाली की छुट्टियां होती थी, एक साथ ही होती, मतलब 10-15 दिन की एक साथ छुट्टी होती थी। तो हम लोग उरई में रहते थे। उरई में ऊपर बहुत छत, बड़ा सा घर था, तो ऊपर एक बरामदा था। उसमें एक पीछे की तरफ खिड़कियां थी बहुत सारी। तो मुझे हमें रूप याद करने के लिए दिए गए थे छुट्टियों में, ये रूप याद करके लाना। अब वही ना, खेल कूद में सारे दिन निकल गए, हमने याद ही नहीं किए रूप। अब जब अगले दिन स्कूल खुलना है और आज हमें याद करने तो खिड़की में से, ये भी मेरा सौभाग्य ही था एक तरह से, कि खिड़की में से चांदनी आ रही थी। वहां पर उरई में उस समय लाइट भी नहीं थी। तो उस खिड़की में जो चांदनी रात आ रही, रोशनी आ रही थी, उसमें मैं लेट के, मैंने लेटे लेटे, क्योंकि रात में आज बहुत देर तक पढ़ो या ये, तो वो भी मतलब ठीक नहीं था। तो बस उसमें मैंने रूप याद किए। ये मुझे अभी तक याद आता है। अब खैर सुना दिए, स्कूल में डांट नहीं पड़ी, ये अच्छा रहा। यू नो, अगर आपको बच्चों को कुछ करेक्शन भी करना है, अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और आपको करेक्शन करना है, तो उसको करने से रिलेटेड एक जो आपके पास इंसिडेंट है वो बता हाँ, बच्चों का भी एक आत्मसम्मान होता है भाई। वो ऐसे नहीं है कि बच्चे आज को कुछ भी कह दो, कैसे भी कह दो, कुछ भी डांटो। हमारे एक भाई थे, हैं, तो वो जब बहुत बचपन की बात बता रही हूँ मैं, बहुत छोटे थे, तो हमारी मदर को किसी को कुछ समझा रही थी, और ये बीच में बोल रहे थे। तो कुछ कहना चाह रहे थे अपनी बात, तो उन्होंने डांट दिया उसको ऐसे कि क्यों बीच में बोल रहा है ऐसे, बस इतना ही भर कहा, कुछ ज्यादा नहीं डांटा भी नहीं। तो बाद में वो खूब रोए कि यार तुमने सबके सामने, उनके सामने मुझे क्यों डांट दिया। तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। तो हमें भी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ऐसे डील नहीं करना चाहिए कि कुछ भी कह दो, कभी भी कह दो, सबके सामने कर दो। बताने हैं, कोई बात गलती करते हैं तो उसको बाद में आप समझा सकते हैं कि ऐसे मत करना, नहीं करना चाहिए। सब जो काम गलत कर रहे हैं तो उसको बताना भी पड़ेगा, तब तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो ये ऐसे है उदाहरण ऐसे। तो जैसे आप अपने भाई बहनों में छोटी हैं, तो अ, छोटे होने के फायदे ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है? छोटे होने के मेरे ख्याल से तो फायदे ही ज्यादा है। प्रेम सब वो मिलता है हर जगह। प्रेफरेंस मिलती है एक तरह से। छोटी है तुम ये कर लो, छोटे हो तो ये कर लो। तो ऐसे, और वैसे मैं, मुझे जहाँ तक याद है, कोई खास डिफरेंस तो रखा ही नहीं जाता था। सबको समान ही व्यवहार मिलता था स्कूल घर में। मतलब एक तो लड़का लड़की का तो भेद कोई था ही नहीं। सब हम बच्चे सब तरह के खेल खेलते थे। गुट्टे खेलते थे, हमारे भाई भी खेलते थे, और सिकड़ी और रस्सी कूदना, ये सब खेल, मतलब बहुत ही अच्छा था हमारा बचपन में। जेंडर एक डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं था? हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं था। सबको उतना ही पढ़ाई लिखाई की पूरी छूट थी। छूट, और सब जो जो जिसने जो जो पढ़ा, जिसकी
योग्यता और उसके पसंद के हिसाब से जो जिसको सब्जेक्ट पढ़ना था वो पढ़ा सबने। तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी, बिल्कुल आराम से रहते थे। बचपन हमारा बहुत सुखद रहा, भगवान की बहुत कृपा रही, यही कहना चाहिए। सबसे बड़ी तो यही बात है। तो जैसे जैसे आप बड़ी होती गई तो फिर आपने पहले एमए किया हिंदी में, फिर संगीत प्रभाकर, इतना सारी बहुत सारी अलग अलग चीजें की हैं आपने, बीएड किया, फिर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू बिकेम अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। इतना बढ़िया खाना बनाती हैं, इतनी सुंदर सुंदर फ्रॉक्स बनाती थी हम लोग की, तो जस्ट अबाउट एवरीथिंग ऑलमोस्ट। हाँ, तो ये जो एक चीज है कि हर चीज सीख ली, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी आपकी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपने सब चीज सीख ली? जैसे आजकल एक ग्रोथ माइंडसेट की बहुत बात होती है कि यू शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, की कीप लर्निंग समथिंग न्यू। और अभी भी इन द करेंट टाइम्स ऑल्सो, जैसे अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी है जो आप लोग के बचपन में तो थी ही नहीं, हमारे भी बहुत बचपन में नहीं थी। तो व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ दैट, कि हम सीखने की अगर चाह रखते हैं तो उसका क्या हाँ, इम्पैक्ट है? वो एक उसका ये है कि ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं, और उसके लिए सीखने की इच्छा अंदर से होनी चाहिए। और हमारी मदर जो थी, माँ हमारी, वो सब कुछ जानती थी, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो वो नहीं जानती थी। तो उनके साथ साथ हम लोग भी सीखते थे कि जब किचन में वो जाती थी तो हम उनके साथ किचन में जाते थे। और बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाती थी, सब कुछ बना लेती थी वो। तो वो भी उनके साथ से सीखा हमने। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, गाना भी गाती थी, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाती थी। तो और गाने का भी हमारे ललित कलाओं में संगीत का महत्व था। हमारे फादर को भी था कि सिखाया जाए, तो उसके लिए स्कूल में भी, उस जमाने में तो स्कूल में भी एक सब्जेक्ट था हमारा संगीत का, वो सीख पढ़ते थे, स्कूल में सीखते थे। कुछ स्कूल घर में भी टीचर भी रखे गए। बड़ी हमारी बहन थी, उनके लिए सितार बजाती थी बहुत अच्छा, उनके लिए। उसके अलावा संगीत विद्यालय शाम को होता था, वहां भी जाते थे हम लोग। तो इस तरह से हर तरह की योग्यता का, कला सीखने का हमें अवसर मिला। अवसर उसके लिए हमें प्रोत्साहित किया गया, ऐसे नहीं। तो प्रोत्साहन बहुत बड़ा था। तो हमारे फादर सुनते थे, ऐसा क्या सीखा, सुनाओ, ऐसे करके पॉजिटिव। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट था। तो बस यही सब था, तो उससे सब कुछ हो गया। तो नहीं, हर बच्चे की अलग अलग पोटेंशियल होती है, और हर बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी टू लर्न भी अलग अलग होती है, और इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है, मोटिवेशन भी अलग अलग होता है। तो मे बी वन थिंग दैट आई एम लुकिंग एट इज कि पेरेंट्स को इस चीज को समझना चाहिए कि किस तरीके का पोटेंशियल है बच्चे के अंदर, उसको मोटिवेट करना चाहिए और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। तो एवरी चाइल्ड इज अ डिफरेंट फ्लावर, तो वो अलग तरीके से अलग टाइम पे ब्लॉसम करेगा। हाँ, और उसके लिए जो भी उसको चाहिए, हर बच्चे की नीड्स अलग अलग है, तो उसके हिसाब से पेरेंट्स करें अगर, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ बिल्कुल पेरेंटिंग ठीक कह स्टाइल। रही हो। ऐसा ही होना चाहिए, बच्चों को हर एक चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए, जो जिसमें उसकी जो उसकी योग्यता है उसके हिसाब से। उसको ये नहीं है कि हमें ऐसा डॉक्टर ही बनाना है बचपन से। अरे भाई, उसको अगर नहीं बनना है डॉक्टर, उसको और कुछ इसमें रुचि है, तो उसको वो करने का मौका दो, उसमें वो अच्छा कर पाएगा। हर एक को तुम अपने हिसाब से नहीं बना सकते, उनको अपनी प्रतिभा के हिसाब से पढ़ने का, सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा हमारे घर का वातावरण तो ऐसा ही था वैसे। तो बस तो उसका इम्पैक्ट आपकी पेरेंटिंग पे भी है बहुत। हाँ, सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एज पेरेंट्स हम लोग सिर्फ एक पेरेंट नहीं है, हम एक रोल मॉडल भी हैं बच्चों के लिए। दे सी कि हम कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, हम उनके फेलियर्स को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, कैसे डील करते हैं उसके साथ, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड। किसी किसी अलग अलग बच्चे की अलग अलग स्वभाव भी अलग अलग होता है। तो फिर उसके बाद जैसे आप यू गॉट मैरिड, और फिर अलग अलग जगहों में रहे आप लोग, सीआरपीएफ में थे पापा, तो बहुत सारी अलग अलग जगह आपने देखी। कैसा लगता है आपको कि एक जगह पे रहने वाले लोगों की ज्यादा अच्छी लाइफ है, या जो लोग अलग अलग जगह घूमते हैं उनकी? विच इज योर चॉइस, आई मीन गिवन अ चॉइस, कि आपको क्या लगता है कि बेटर क्या है? हमें तो अपना ही बेटर लगता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसफर तो हमारे पिताजी के साथ भी हमारे
ट्रांसफर होते थे, जब वो भी ट्रांसफर वाली सर्विस थी उनकी, तो उनके साथ भी हम लोग यूपी की गवर्नमेंट की सर्विस में थे, तो हमने यूपी के बहुत सारे जगह देखी। उससे जगह देखने का भी मौका मिलता है, सीखने का भी मौका मिलता है, और वहाँ की संस्कृति और सब कुछ देखते हैं। कश्मीर में हम लोग रहे, फिर हमारे हस्बैंड भी थे, वो तो सीआरपी में थे, तो उनके साथ हम पूरा पूरा इंडिया ऑलमोस्ट देख लिया हमने। कश्मीर में भी रहे। कश्मीर का तो सौंदर्य सबको पता ही है, कश्मीर धरती का स्वर्ग माना जाता है, और सचमुच में बहुत ही सुंदर जगह थी। सब डल लेक और बहुत सारे गार्डन वहाँ के, बहुत फल फूल, वहाँ की केसर और क्या बोलते हैं बादाम अखरोट और सब चीजें मिलती थी वहाँ पे। तो सब बहुत ही अच्छा है, वहाँ का अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। और कौन कौन से स्टेट्स के आपको एक्सपीरियंस यादगार लगता है? और तो सब जैसे आंध्र प्रदेश में भी रहे, और मणिपुर नागालैंड वहाँ भी रहे। वहाँ की अलग ही चीज थी को, वहाँ बहुत सारे बहुत सुंदर जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य तो उधर का देखने के लायक है, बहुत ही अच्छा था। खूब घूमते थे हम लोग, तो वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन इतनी सारी जो जितनी भी पोस्टिंग्स अलग अलग पोस्टिंग्स आपने देखी, उसमें से आपका फेवरेट स्पॉट क्या है? फेवरेट तो बिना सोचे ही मैं कह सकती हूँ कि वो माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू बहुत ही सुंदर, और हमारे लिए उसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि वहाँ एक तो बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, वहाँ स्कूल बहुत अच्छे थे, तो उसमें बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी हुई। उसके अलावा वहाँ मंदिर थे, बहुत मंदिर भी अच्छे थे, प्राकृतिक सौंदर्य भी वहाँ का अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है वहाँ पे। नकी लेक है और दिलवारा टेम्पल, सब हम लोग ने देखा वहाँ का। और लेकिन सबसे अच्छा वहाँ पे एक है संत सरोवर, वहाँ पर हमें अपने आध्यात्मिक गुरु जी मिले, स्वामी ईश्वरानंद जी। उनके साथ उनकी सन्निधि से हमने बहुत ही जिंदगी जीवन का लाभ उठाया, आध्यात्मिक प्रगति प्रगति का हो या जो भी हमें उसका लाभ मिला वहाँ पे। उनके साथ रह के हमें बहुत ही, उनकी देवी सन्निधि में हमने बहुत कुछ सीखा, और आध्यात्मिकता का लाइफ में बहुत महत्व है। उसके बल से आदमी बहुत कठिनाई तो सबके जीवन में, अच्छा बुरा सब कुछ सबको ही देखना पड़ता है, तो उसको सबको सामना करने की शक्ति मिलती है। अच्छा बुरा समय सबका बहुत, मतलब इसमें धैर्य, जो धैर्य और उसकी जरूरत है वो सब उससे मिला हमें, तो वो उसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। अभी भी माउंट आबू जाने का मन करते ही रहता है, कभी जब भी कुछ हो तो वहाँ आंखों के सामने आ जाते हैं वहाँ के विजुअलाइज कर हाँ सकते हैं हाँ इसको भी। हाँ। तो जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम अभी तो यंग है, अभी हमको क्या करना है अध्यात्म का, और अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोविड टाइम्स है, पैंडेमिक है, सब लोग लॉकडाउन है, तो बहुत सारे एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं भी इस चीज को डील कर रही हूँ कि पीपल हैविंग सो मेनी मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब। तो एक तो वो खैर काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपीज वो सब एक डायमेंशन है, लेकिन एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति डेवलप करने से ऐसी सिचुएशन में हैंडलिंग कैसे हमारी चेंज हो सकती है? तो क्योंकि बहुत एक बड़ा गैप जैसा है, क्योंकि सबको तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि अंदर एक धैर्य डेवलप करने के लिए आपको एक गुरु मिले और उनकी सन्निधि मिले, और ये भी एक मुझे लगता है कि प्रारब्ध है कि किसी किसी को ऐसे गुरु मिलते हैं। तो जिनको नहीं मिलते गुरु, और जिनके अंदर, जिनके परिवार में आध्यात्मिक माहौल नहीं है, उन लोग को भी किसी तरीके से इस चीज को डेवलप करना चाहिए। तो व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर कि आप अपने मन से क्या चीज कर सकते मनुष्य के जीवन का एक जो लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति है, तो उसके लिए हमें योगा, ध्यान, पूजा, और एक अंदर अपने हमेशा सोचना चाहिए कि हमारे पास एक शक्ति है जो हमें हमेशा, हमारी हमेशा संभाल करती है, हमें रास्ता दिखाती है, और उसके बताए हुए एक अंदर से अपने एक प्रेरणा होती है, अंतर मन आपका बोलता है, तो उसके हिसाब से हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और हमेशा उस
पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। और भगवान वो एक ऐसी शक्ति है जिसको आप भले ही बैठ के 2 घंटे पूजा ना करें, अंदर अपने ध्यान हमेशा कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको रोकता नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि आध्यात्मिकता का बहुत ही महत्व है जीवन में। अगर अगर किसी की लाइफ में बहुत परेशानी है, इवन नाउ फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक कौन सा एक ऐसा थॉट है जिससे उनको लगे सुकून मिल सकता है, मतलब एक या दो, या बेसिकली व्हाट आर द आइडियाज जिनसे कि जैसे आपको भी मैं देखती हूँ कि कितनी सारी अलग अलग चैलेंजेस लाइफ में फेस किए हैं हम, एज अ फैमिली ऑल ऑफ अस फेस, तो उन चैलेंजेस में भी आई हैव ऑलवेज नोटिस कि यू नेवर गॉट पर्टर्ब्ड। तो हम लोग को हमेशा ये लगता था कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल बिकॉज माई इन कंट्रोल, ऐसी एक वो होती थी। पर ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं हुई होगी। वेयर डिड दैट स्ट्रेंथ कम फ्रॉम, व्हाट वाज दैट बिलीफ, या आपके अंदर ये कहाँ से आई ये वाली चीज, क्या चीज है वो? वो पॉजिटिविटी का जीवन में बहुत महत्व है, पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैं तो यही कहती हूँ कि हमें जो हमारे जो गुरुजी मिले हमें, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, और सारा बल उसी का है। आध्यात्मिकता एक ऐसा एक खंबा है जिसको कह सकते हैं, जिसके सहारे आप पूरा चक्कर कहीं का भी लगा सकते हैं। उसके सहारे आपको बहुत ही आंतरिक बल मिलता है, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें ध्यान अपना रखना चाहिए। एक शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति तो वही है, पराशक्ति है, जिसमें हमें हमेशा अपना विश्वास और वो रखना चाहिए, धैर्य और समर्पण भाव होना चाहिए कि बस वो करेगा, जो संभालेगा वही हमें संभालेगा। और ये सच्चाई है, वही अच्छा बुरा सब उसी के उससे होता है। कभी हर एक के लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो हमें हर एक चीज उसको उपलब्ध है, और उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। एक एक कहावत है, ये भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, और बहुत ठीक बात है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो हमारे पास हमें प्राप्त है उसको हम देख के अगर संतुष्ट रहेंगे, संतोष बहुत बड़ा धन है जीवन का। तो हमें अच्छा लगेगा। हम अपना छोड़ के हमारे पास इतनी जो कुछ है वो उसको दूसरे का देख के कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, भौतिक चीज है, भौतिकवाद का भी आजकल बहुत मनुष्य उसके पीछे चल गया है। ये चीजें इकट्ठा करने बड़ी ज्यादा से ज्यादा, उनका कोई मैं है, जरूरत जितनी है उतना लो, बाकी सबको पता है यही पड़ा रहेगा, कोई साथ में नहीं ले जाएगा कुछ भी। तो उसके हिसाब से संतोष से रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जबरदस्ती ये भी एक स्वभाव भी होता है थोड़ा सा लोगों का, नेगेटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, जितना सोच रहे हो वैसा ही लगता रहेगा। तो नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, जो आवे संतोष जन सब धन धूर समान, ये सबको पता है ये बात। हाँ, उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे आपकी जर्नी स्टार्टेड एज अ लिटिल गर्ल डॉटर, देन यू ग्रू अप, फिर आपकी शादी हुई, फिर आप मम्मी बन गई, फिर अभी आप एक दादी भी हैं, नानी भी हैं। तो जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनकी लाइफ में और हम लोग के बचपन में या आपके बचपन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो उन डिफरेंसेस में से आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा दो तीन जो आपको ध्यान आते हैं इम्पोर्टेंट, क्या डिफरेंसेस है, और पेरेंट्स के लिए वो बहुत चैलेंजिंग है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट? एक तो डिजिटल नहीं था हमारा, हमारे जमाने में, तो ये सब ये सबसे बड़ा तो आजकल ये मोबाइल एक बहुत बड़ी देन है। वैसे साइंटिफिक इसके कितने फायदे हैं, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है मोबाइल से, बच्चों को खास तौर से। अब और खास तौर से आजकल पेंडेमिक, इसमें तो बेचारे बाहर नहीं जा सकते कहीं खेलने के लिए, तो वो दिन भर उसी में लगे रहते हैं। तो उससे आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, और क्रिएटिविटी कम हो जाती है बच्चों की। अब तो इसलिए उनको जहां तक है ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका एक रूटीन बनाया जाए कि आप इतने बजे आप ये ड्राइंग करो, लिखो, पढ़ो, खेलो, या एक्सरसाइज करो। योगा की अगर आदत पड़ जाए बच्चों में तो ये तो बहुत ही बड़ा एक उपलब्धि हो जाती है। योगा का जीवन में बहुत महत्व है। कोई आजकल हमारा देश का योगा जो है वो दूसरे देशों में सभी जगह लोग अपना रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो हम क्यों ना करें उसको, जब हमारा तो योगा की एक आदत पड़ जानी चाहिए एक स्टेज पे आकर। खेल कूद को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, खेले कूद और पढ़े भी। और एक शेड्यूल
मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपकी जनरेशन के लोग जो हैं बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी, तो वो लोग सब एक रूटीन मेंटेन करते हैं, खाने का टाइम, सोने का टाइम। तो उस डिसिप्लिन को लाने के लिए लाइफ में पेरेंट्स क्या कर सकते पेरेंट्स बता सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं। उठो, उनको लाभ बता सकते हैं कि भाई सुबह उठोगे तो तुम्हें ये फायदे होता है। सुबह का जो समय है उसमें आपको आसमान देखते ही, उगता हुआ सूरज देखते ही एक मन में एक खुशी सी होती है। हैं। तो और सुबह की चिड़िया चहचहा रही हैं और जो प्रकृति का उस समय का सौंदर्य होता है वो बहुत हम लोग तो देखते हैं रोज, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीजों की अगर उनको समझ आ जाए तो और करने लगे तो फिर नथिंग लाइक दैट। पर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले पेरेंट्स खुद उठना शुरू हाँ, करें। ये तो है ही, खैर ये तो है ही। रोल मॉडल बनने से ही तो बच्चे सीखते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे अब उनसे हम उम्मीद करें कि वो 5 बजे उठ के योगा करें या कुछ भी करें। तो बिकॉज चिल्ड्रन सी एंड चिल्ड्रन हाँ, चिल्ड्रन को वही देख देख के सीखते हैं। देख देख के सीखते हैं। तो बिफोर वी कंक्लूड, एक जैसे रिलेशनशिप्स, बहुत सारी अलग अलग रिलेशनशिप्स होती हैं। तो एक इन लॉज वाली रिलेशनशिप होती है, दैट यू हैव अ डॉटर इन लॉ ऑल्सो। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि उसमें बहुत एक ट्रेडिशनली स्पीकिंग डॉटर और डॉटर इन लॉ में बहुत अलग तरीके का वो रहता है। बट दैट इज नॉट द केस विद यू। सो टॉक टू अस अबाउट दैट। उसका तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि डॉटर जो है वो डॉटर इन लॉ, वो उसके बारे में हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि दूसरी वो है ये, उसको हमें एक हर समय आलोचनात्मक दृष्टि से कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। उसको समय देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो बेचारी अपना घर परिवार माता पिता सब कुछ छोड़ के इस नए वातावरण में आई है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। उसको टाइम देना चाहिए और वही सबको प्यार से अपनाओगे तो वो भी अपनाएगी। उसके लिए भी यही है। अगर उसको हम हर समय उसको ऐसे क्रिटिकली देखते रहेंगे, यार जैसे इसने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया, हर एक को प्यार से अपनाओगे तो तुम्हें अपनाएगा। ये सीधी सी बात तो ये है। तो वही हमने हमारी भी बहू है तो हम उसको अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, वो भी हमें बिल्कुल पूरा सम्मान देती है। मे बी इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर कि जो डॉटर इन लॉ है वो भी तो किसी की डॉटर है। हाँ, वही। सो वो बेचारा वो उसको यही सोचना है कि वो अपना घर का हर एक घर का वातावरण अलग होता है, तो उसको कुछ समय तो लगेगा कि हमारे एडजस्ट करेगी। और एडजस्ट करने के लिए उसको प्यार से देखना चाहिए। उसके उसके हर एक बात को हमें आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये ऐसे नहीं कर रही वैसे नहीं कर रही। अरे भाई सीखेगी, सीखने में तो टाइम लगता ही है। तो अगर ऐसे करेंगे तो हमें भी कभी पे हमें मिलेगा, आदर सम्मान का मिलेगा। bye everyone, hope you enjoyed listening to our conversation. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू, धन्यवाद।